Hello, my dear students, and welcome back to Balaji Online Classes. Today, I, Fezia Kritwai, is here to illustrate chapter number 4, Local Self-Government of Class 6, Civics. What do you understand by local self-government? What actually it is? Local self-government is basically an institution which looks after the local problems and provides basic services to the people. These basic services basically include the water supply, the electricity, the education system, the health care, the transport, etc. And these services are both essential in the rural as well as in urban areas. India, you all know that India is such a vast country, such a big country, right? So it is not possible for the state and central government alone to manage the different problems at the local level. That's why this purpose is served by the local self-government. That's why local self-government is created. Then we have certain advantages of local self-government, and that are they offer better solutions for the problems. Then village community also participates more actively in development measures. Also, it trains people at local level to be more self-reliant. It reduces the work of central and state government. Then we have the next topic of this chapter, that is the Panchayati Raj. Panchayat system existed from ancient times, right? The village system is the first unit of administration since ancient times, and the village affairs were carried out by the decisions of the Panch and were binding upon all, right? And क्या होता था कि जो ये चीज जो टाइम थी ये मिडवल पीरियड में भी ऐसे ही रही, और बस ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने पंचायती सिस्टम को थोड़ा सा डिस्करेज किया. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस again this system is revised and revived, and now it is practiced in almost each and every village in the current India. Then what actually panchayat is? Panchayat means a committee, right, of 5 elder persons. In ancient period, every village had a panchayat which consisted of all the village elders, and they solved all the problems of the villages. The basic problems, that is the theft, the land dispute, or any other matter, that is basically looked after by the panchayats. The Panchayati Raj system is a 3-tier system, in which the highest level is the Zilla Parishad, which is at the district level. The district is divided into the blocks and institutions, and it is called as Block Samiti. Then the lowest level of administration in rural areas is the village, and the institution is called as Village Panchayat. Then Panchayat at village level. Village level में different levels पे पंचायत होती है. Like we have Gram Sabha, we have Gram Panchayat, and we have न्याय पंचायत, right? ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा में जितने भी इनहैबिटेंट्स होते हैं विलेज के, बेसिकली जो भी 18 ईयर्स की एज के हो चुके होते हैं, उसके अबव होते हैं, वो क्या होते हैं? दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, एंड दे प्ले अ वेरी स्पेसिफिक रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज. देन वी हैव द ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत क्या होता है? जो मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के, वो क्या करते हैं? वो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं आपस में ही, ठीक है, और ग्राम पंचायत फॉर्म करते हैं. जो नंबर होता है रिप्रेजेंटेटिव का, वो वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, एंड ऑल्सो देयर आर रिजर्वेशंस गिवन टू द SC, STs एंड द विमेन. देन कुछ ग्राम पंचायत की हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, राइट? जैसे क्या होता है? दे हैव टू प्रोवाइड एजुकेशन, दे हैव टू लुक आफ्टर द हेल्थ एंड सैनिटेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ विलेज प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, एंड द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड एज प्रधान. Then Panchayat Secretary is a permanent employee, and his duty is to maintain Panchayat accounts. The Gram Panchayat gets its income from the taxes on the house, shops, fairs, sale of village property, fees from registration, sale of cattle, and government grants. ये basically क्या होते हैं? Sources होते हैं हमारी ग्राम पंचायत के इनकम के. Then what are the functions that are performed by the ग्राम पंचायत? पहला क्या होता है? प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड इज द लुकिंग आफ्टर द हेल्थ एंड द सैनिटेशन. देन सुपरविजन द वर्क ऑफ अदर फंक्शनरीज, ऑल्सो होल्डिंग फेयर्स, मेंटेनिंग विलेज लाइब्रेरी एंड मैटरनिटी सेंटर्स. Then also maintaining records of birth and death, supervision of primary schools, planting of trees, and supply of good seeds and fertilizers. These are the certain functions that are performed by the Gram Panchayat. Then we have the Nyay Panchayat. Now नाम से ही समझ में आ रहा हो कि it is related to something like justice, right? It is an important organ of rural local self-government, and it dispenses justice and settles minor disputes of the villagers. And this is basically headed by the Sarpanch.
जो हमारी न्याय पंचायत होती है उसको हेड कौन करता है, जो उसका हेड होता है उसे हम कहते हैं सरपंच, राइट। एंड द मेंबर्स ऑफ न्याय पंचायत आर कॉल्ड एज पंच. The main function is to hear and decide minor civil and criminal cases. Then we have the block समिति. पंचायत जो होती है ब्लॉक लेवल पे उसे हम कहते हैं ब्लॉक समिति, राइट। और ये बेसिकली एक विलेज और एक डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक लिंक की तरह एक्ट करती है, राइट। जो प्रधान और पंच होते हैं ग्राम पंचायत के, वो ब्लॉक में रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं ब्लॉक समिति के, ठीक है। और ऑल द मेंबर्स आफ्टर दैट ऑल द मेंबर्स दे टुगेदर इलेक्ट द चेयरपर्सन एंड अ वाइस चेयरपर्सन फॉर द ब्लॉक कमिटी टू बेसिकली सी ईच एंड एवरी डे वर्क. देन वी हैव द फंक्शंस. फंक्शंस क्या होते हैं ब्लॉक समिति के? बेसिकली ये सिविक, जितनी भी सिविक सर्विसेज होती हैं, जो बेसिक सर्विसेज होती हैं, वो लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रही हैं गाँव में. देन व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ दीज ब्लॉक समिटीज? पहला तो जो टैक्सेस लगते हैं लैंड पे, कैटल फेयर्स पे, हाउसेस पे. देन जो ग्रांट्स होती हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, ये बेसिकली क्या होता है, इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है. Then there is also some developmental programs that are implemented through panchayat samitis, and they are rural housing, better roads, rural water supply programs, hygiene and sanitation, self-employment training for women and unemployed youth, and also promoting cottage industries. Then we have the Zilla Parishad. ये क्या होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वर्क करता है उसे हम कहते हैं जिला परिषद, राइट। परिषद क्या होता है, हाईएस्ट टायर होता है पंचायती राज सिस्टम का, हाईएस्ट टायर, राइट। एंड दिस इज अ लिंक बिटवीन द विलेज एंड द स्टेट लेजिस्लेचर. Members of Zilla Parishad consist of the chairperson of block committee in the district, members of central and state legislature of the district, representative of scheduled caste, scheduled tribes, and also we have some women quota, right? देन इनका इनकम सोर्स क्या होता है? इनका इनकम सोर्स बेसिकली मोस्टली टैक्सेस से आता है, ठीक है, और फाइनेंशियल ग्रांट से आता है जो स्टेट गवर्नमेंट देती है. देन वी हैव म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को इलेक्शंस के थ्रू इनके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है. जो भी लोग 18 ईयर्स या अबव एज के होते हैं, दे हैव द राइट टू गिव देयर वोट, ठीक है, इन दिस प्रोसेस. उसके बाद क्या होता है, जो कैंडिडेट होता है दैट मस्ट बी देयर इन द वोटर्स लिस्ट. जो भी कैंडिडेट जो होता है, जो कॉन्टेक्स्ट करता है इलेक्शन पे, उसकी भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, राइट. दैट उसको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, उसको 25 ईयर्स होनी चाहिए एज पे, ठीक है, और उसका नेम जो है वो वोटर लिस्ट में होना चाहिए. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वेरी बिटवीन 50 to 100. These representative elect a mayor and a deputy mayor. जो मेयर होता है बेसिकली वो हेड होता है और वो सारी मीटिंग्स को, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सारी मीटिंग्स को हेडेड करता है, ठीक है, लीड करता है. एवरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे हम कहते हैं सीईओ, एंड हु इज आल्सो कॉल्ड द म्यूनिसिपल कमिश्नर. The state government or central government appoints him. He acts as a link between the state government and municipal corporation. Then we have the municipalities. म्यूनिसिपैलिटीज क्या होती हैं? सिटीज जो होती हैं जिनकी पॉपुलेशन जो होती है 20,000 से लेके 5 लाख के बीच में होती है, वहां पर एक म्यूनिसिपैलिटी होती है, एक म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, ठीक है, ऐसे एरियाज में. उसके बाद जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के, वो उस पर्टिकुलर सिटी की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, राइट, कितनी पॉपुलेशन वहां पे है. Then the elected members elect a few experienced and respected citizens of city who are called as aldermen. Some seats are reserved for scheduled caste, scheduled tribes, and also for women. The term of office of municipality is 5 years. जो term होता है, period of time होता है इसका, वो 5 years होता है. Then we have certain functions of municipality and municipal corporation. पहला फंक्शन क्या है कि प्रॉपर हाइजीन और प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन करना. दूसरा क्या है कि स्कूल्स ओपन करना बच्चों को एजुकेट करने के लिए, बोथ एट द प्राइमरी एंड एट द जूनियर लेवल्स. Then also to supply the safe drinking water and make arrangements for street lighting. Then to construct road and bridges. Also to maintain the records of birth and death and issue their certificates. They also provide and maintain the cremation grounds, right, graveyards. Then to construct and maintain marketplaces for selling vegetables, fruits, consumer goods, etc. Then यहाँ पे पार्क का, पिकनिक स्पॉट्स का, नाइट शेल्टर्स का भी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, और पब्लिक टॉयलेट्स और लेबोरेटरीज का भी कंस्ट्रक्शन होता है. देन दे ऑल्सो मैनेज द वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड बस सर्विसेज. देन व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ दीज म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस?
टैक्स जो लगता है लैंड और प्रॉपर्टी पे वो इनका एक सोर्स होता है। दूसरा क्या होता है, जो ड्यूटी जो कस्टम ड्यूटी लगती है गुड्स पे जो आ रहे होते हैं बाहर से और जा रहे होते हैं, ठीक है। देन इनकम फ्रॉम रेंट ऑन म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी, देन टैक्सेस ऑन द शॉप्स, ऑन द मार्केट्स and on commercial institutions, then grants and loans from the state government. These are some of the sources of income for municipal corporation and municipality. Then we have the control on the local bodies. जो भी ये डिफरेंट बॉडीज हमने पढ़ी, जिला परिषद पढ़ी हमने, ग्राम पंचायत पढ़ी हमने, न्याय पंचायत पढ़ी, वी हैव स्टडीड अबाउट म्यूनिसिपैलिटी, अबाउट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनको कोई कंट्रोल भी करता है, कोई सुपरवाइज भी करता है, ठीक है। तो कौन करता है वो? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो बेसिकली जो वर्क होता है इनका उनको सुपरवाइज करती है, ठीक है। और इन केस अगर उसको लगता है कि प्रॉपर्टी जो है चीजें मैनेज नहीं हो रही है, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि इन बॉडीज को वो डिसॉल्व कर दे, राइट। Then the government has also introduced many forums for the readdressals of people grievances. Some of them are consumer courts, lok adalats, public interest litigation, residents welfare organizations. Then we have the last topic of this chapter, that is the nagar panchayat. नगर पंचायत क्या होता है? एक ऐसा एरिया, ठीक है, जो विलेज से बड़ा हो लेकिन सिटी से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज टाउन। और जो पंचायत टाउन में लगती हैं उन्हें हम कहते हैं नगर पंचायत, राइट। Towns have a Nagar Panchayat, which is an elected body, and its members are elected by the registered voters of that area. यहाँ पे भी इलेक्शन होता है और जो भी लोग होते हैं 18 years और above के, वो बेसिकली इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। देन इनके जो मेन फंक्शंस होते हैं, दैट आर बेसिकली द वाटर सप्लाई, द हेल्थ केयर, द सैनिटेशन, द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ टाउन्स, रोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। देन इनका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो हाउस टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है, व्हीकल टैक्स होता है और अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. So with this topic class, your chapter ends here, but you have to read this chapter thoroughly. You have to understand the content of this chapter. Also, you can get the notes of this chapter through School Mitra app. Kindly download those PDFs and complete your work. Thank you and have a nice day.